لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے لینکس کے اندر پرمیشن کو اسٹڈی کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا دو طریقے ہیں پرمیشن اسائن کرنے کے، اور وہ ہم نے ایک جو تھا میتھڈ وہ اسٹڈی کر لیا تھا ایکسپلسٹی جو ہے۔ آج ہم بائنری میتھڈ کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے کہ بائنری یا نمبر سسٹم کے تھرو جو ہے وہ ہم کس طرح کسی فائل یا ڈائریکٹری کی پرمیشن جو ہے لینکس آپریٹنگ سسٹم کے اندر یوزر یا گروپس کو جو ہے وہ اسائن کی جاتی ہے۔ تو پرمیشن سیٹ کرنے کے لیے بائنری ریفرنس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو 3 انٹیجر نمبر ہوتے ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ وہ 3 نمبرز انٹیجر اگر آپ فالو کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ پرمیشن جو ہے وہ کس طرح سائن کی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی وہ 3 نمبر جو ہے یہ ایک ہمارے پاس سیمپل ہے۔ فرسٹ آف آل ہم اس سیمپل کو دیکھیں گے، پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کون سے نمبر جو ہیں وہ 3 انٹیجر ویلیو کن چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ ابھی ہم نے یہ ہمارے پاس ایک جو ہے بیسیکلی ہم نے کمانڈ سیمپل کے طور پہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے chmod 750 mysolution.txt۔ یہ جو 750 آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی پرمیشنز ہیں۔ اس کا مطلب ہے 7 کا مطلب ریڈ رائٹ پرمیشن، یہ آپ کا ہے ریڈ اور ایگزیکیوٹ پرمیشن، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ لیکچر جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیا ہے، وہ آپ لوگوں کو لیکچر جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، ان کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے جو پریویس لیکچر ہم نے کیے ہوئے، تب آپ لوگوں کو یہ آگے نیکسٹ لیکچر کی بھی سمجھ آئے گی۔ ادروائز آپ لوگوں کو یہ لیکچر جو ہے سمجھ نہیں آئے گا، دیٹس وائی کہ آپ کی جو پریویس لیکچر کا کوئی مس ہے تو اس کو لازمی دیکھ لیجئے گا۔ تو اونر جو ہے پہلا جو ڈیجٹ ہے وہ اونر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، دوسرا ڈیجٹ جو ہے وہ گروپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور تیسرا ڈیجٹ جو ہے وہ ادر یوزرز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یوزر اینڈ گروپس کیا ہوتے ہیں یہ ہم ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، ہم اسٹڈی کر چکے ہیں۔ تو لیٹ سی کہ یہ پرمیشن جو ہیں وہ کیسے امپلیمنٹ کرتی ہے اور ان کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے اگر ہم 777 لکھتے ہیں اٹس مین کہ آپ جو ہے 3 طرح کی پرمیشن ہوتی ہے، ریڈ رائٹ اینڈ ایگزیکیوٹ۔ تو یہ 7 کا مطلب ہے کہ فل پرمیشن، پہلا 7 ڈیجٹ جو ہے وہ اونر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یعنی کہ اونر کے لیے جو پرمیشن سیٹ کی ہیں وہ ریڈ رائٹ اور ایگزیکیوٹ تینوں پرمیشن ہیں۔ اسی طرح گروپ، یعنی کہ وہ یوزر جس گروپ کے اندر ہے، اونر جو اس گروپ کے اندر ہے، اس گروپ کی پرمیشن جو ہے یعنی کہ باقی اس گروپ کے جو یوزرز ہیں ان کے لیے پرمیشن بھی 7 سیٹ ہے۔ اسی طرح ادر یوزر جو ہیں دوسرے گروپس کے جو یوزر ہیں ان کی پرمیشن بھی 7 ہے۔ تو یہ میکسیمم 7 ویلیو جو ہے وہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ تمام کی تمام پرمیشن جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ہم نے ایکسپلسٹ پرمیشنز کو لاسٹ ویڈیوز میں اسٹڈی کیا، تو لاسٹ لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایکسپلسٹ پرمیشن جو ہے ریڈ کو آر کریکٹر سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، اور ریمبر اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بائنری نمبر سسٹم، بائنری ریپرزینٹیشن یعنی کہ فائل پرمیشن کے لیے ہم امپلیمنٹ کریں گے اس لیکچر میں، تو 4 جو ہے وہ ریڈ کو انڈیکیٹ کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو پرمیشن ریڈ اسائن کرنی ہے یا ریموو کرنی ہے تھرو بائنری ریپرزینٹیشن تو 4 ڈیجٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ڈبلیو رائٹ کو یہ ہم کر چکے ہیں، اور 2 ویلیو جو ہے بائنری کے اندر وہ رائٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، دیٹ از آکٹل ویلیو، بیسیکلی آپ اسے کہہ سکتے ہیں آکٹل ویلیوز ہے۔ ایگزیکیوٹ فنکشن کے لیے جو ہے ایگزیکیوٹ پرمیشن کے لیے ایکس جو ہم لاسٹ لیکچرز میں کر چکے ہیں، یہاں پہ 1 انڈیکیٹ کرتا ہے۔ تو یہ آپ اگر ہمیں ریڈ رائٹ اور ایگزیکیوٹ کے لیے RWX یہ ہم نے پرمیشن امپلیمنٹ کی ہیں لاسٹ اس میں ایکسپلسٹ جو ہے وے کے تھرو۔ آج ہم اس کو جو ہے اگر آپ نے بائنری نمبر کے ذریعے ریپرزینٹ کرنی ہو RWX کو تو آپ 7 لکھیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ریڈ رائٹ اور ایگزیکیوٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ آپ تینوں پرمیشن دے رہے ہیں۔ اگر صرف ریڈ اور ایگزیکیوٹ کرنی ہے RX تو یہاں پہ یہ 6 ڈیجٹ جو ہے وہ ریڈ اور رائٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ یہ آلریڈی یہ چیزیں ہم اسٹڈی کر چکے ہیں اور امپلیمنٹ بھی کر چکے ہیں۔ جسٹ ریڈ کے لیے 4 اور یہ ریڈ ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ریڈ اور رائٹ کرنا ہے تو پھر 5
और 5 रीड और राइट को, और 0 अगर होगा तो इसका मतलब है कोई राइट्स नहीं है, नो राइट्स, यानी कि कोई राइट लेना नहीं चाहते। दैट इज फाइल परमिशंस, जो कि हम अभी देख रहे हैं। आए जी कि अब हम देखते हैं कि इसको लगानी किस तरह, परमिशंस को इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। किसी भी फाइल और डायरेक्टरी के ऊपर आपने ओनर, ग्रुप, ये आपके पास ओनर, ग्रुप और अदर यूजर की परमिशन आपने इंप्लीमेंट करनी हो तो ch मोड यूजर परमिशन, यानी कि वो नंबर जो अभी हमने स्टडी किए हैं, और फिर फाइल या अगर डायरेक्टरी पे लगाना है तो उनका नाम लिखेंगे आप। ये हमारे पास नीचे एक परमिशन है, हमने इंप्लीमेंट की है, ch मोड 7, ये ओनर है, ओनर को फुल परमिशन। इसके बाद ये जो है 5, ये आपके पास रीड और राइट की जो है आपने जो है राइट और एग्जीक्यूट की, रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन आपने दी है ग्रुप को, ये ग्रुप है। और इसी तरह सेम आपने 755, और ये अदर यूजर, अदर यूजर में जो है वो आपके पास आपने वही रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन दी है। ये आपने माई सोल्यूशन नाम की फाइल है या डायरेक्टरी है, उसके ऊपर आपने ये परमिशन जो है वो असाइन की है। ये एक वे है परमिशन अप्लाई करने का। लेट्स सी, ये कुछ कमांड्स हैं, अगर हम देखें तो इस कमांड्स में हम देखते हैं कि किस तरह जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये लिस्ट कमांड हमने अप्लाई की, हम इस तरह माई सोल्यूशन की डायरेक्टरी में, ये प्रॉम्प्ट जो है ना ये आपको फुल बताता है, स्टेटस बताता है। अभी आप करंटली लॉगिन जो हुए हैं वो यूजर की रूट है, यूजर का नाम रूट है, रूट से लॉगिन हुए, रूट यूजर से, और इस टाइम आप माई सोल्यूशन की डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर मौजूद है, माई सोल्यूशन की डायरेक्टरी और फोल्डर के अंदर मौजूद है आप। अच्छा, अब आपने लिस्ट की कमांड जो है वो अप्लाई की, -l के साथ, -l के साथ कह लें, तो इसके अंदर आपके पास जो है 3 डायरेक्टरीज हैं, ये डी और ये आपको इंडिकेट कर रही हैं कि माई डायरेक्टरी, सोल्यूशन और यूजर बैकअप, और एक आपके पास फाइल है इस फोल्डर के अंदर। अब आपने एक डायरेक्टरी और बना ली इसके अंदर माई लैब के नाम से, और आप उस डायरेक्टरी के अंदर लॉगिन हुए। चेंज डायरेक्टरी की कमांड है, ये मैं करवा चुका हूं आप लोगों को कमांडें। तो जैसे आप इंडिकेट करेंगे तो आप अब इस टाइम माई लैब के फोल्डर के अंदर मौजूद है। जैसे चेंज डायरेक्टरी की कमांड अप्लाई की, अब आपने लिस्ट की, तो आपके सामने कुछ भी नहीं शो होगा, क्योंकि अभी तो हमने इसको क्रिएट किया डायरेक्टरी को या फोल्डर को, तो वो ब्लैंक है। आपने इस माई लैब के अंदर अभी आप खड़े हैं, और आपने एक और डायरेक्टरी बना दी, टेस्ट डायरेक्टरी। ये एक डायरेक्टरी बन गई किसके अंदर, माई लैब की फोल्डर के अंदर। और साथ ही आपने एक फाइल क्रिएट की है, टेक्स्ट फाइल, टच कमांड के जरिए। अब आप जैसे ही इसको लिस्ट करेंगे तो आपके पास ये माई लैब फोल्डर के अंदर दो चीजें क्रिएट हो गई हैं, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है और एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। ये अभी हमने टास्क परफॉर्म किए हैं इन कमांड के थ्रू। अच्छा जी, अब अगर आप लिस्ट कमांड के जरिए देखेंगे तो आपके पास ये जो टेस्ट डायरेक्टरी है, इसमें ग्रुप ओनर जो है वो रूट है पहला, और उसके बाद आप इसके ग्रुप को अगर चेंज करना चाहते हैं, इसके ग्रुप को चेंज करना चाहते हैं, ग्रुप चेंज करने की कमांड है चेंज ग्रुप की कमांड। एक ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। एक कमांड और भी है, ch मोड के जरिए भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने जो है ग्रुप कमांड के जरिए माई ग्रुप, एक ग्रुप हमारे पास मौजूद है सिस्टम के अंदर, हमने ये टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर जो रूट ग्रुप था इसको चेंज कर दिया। अब जैसे ही आप लिस्ट कमांड इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके सामने जो नया ग्रुप ओनर आपके सामने मौजूद है वो हमारे पास माई ग्रुप के नाम से है, पहले रूट था। अब आपने कमांड कौन सी की, CHGRP, यानी कि चेंज ग्रुप के कमांड के थ्रू आपने ग्रुप को चेंज कर दिया, और किसके, टेस्ट डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी का नाम टेस्ट डायरेक्टरी है, उसको आपने उसका ओनर ग्रुप चेंज कर दिया, ग्रुप ओनर, ग्रुप जो था उसका आपने चेंज कर दिया ओनर। इसी तरह अगर आप इसको लिस्ट करें तो हमारे पास इस टाइम ओनर के पास जो है राइट्स RWX है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है ग्रुप का RX है, और इसी तरह ऑल अदर यूजर का जो है वो आपके पास यहाँ पे है ये जी, कोई इसमें भी RX है।
लेट्स सी कि हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ये प्रॉपर्टीज जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ओनर को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन देना चाहते हैं, ग्रुप को रीड और एग्जीक्यूट की देना चाहते हैं, और यूजर को जो है वो कोई परमिशन नहीं देना चाहते। ये तीन टास्क जो है वो हमने परफॉर्म करने हैं। तो हम कैसे इसको परफॉर्म करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ch मोड की कमांड अप्लाई करेंगे। 7, अभी आप अगर हम पीछे प्रीवियस स्लाइड में देखें तो हमारे पास ओनर के पास जो था राइट्स था RWX का, रीड राइट एग्जीक्यूट का, और ग्रुप के पास था रीड और एग्जीक्यूट का, और इसी तरह उसके अदर यूजर का जो था वो RX यानी कि रीड और एग्जीक्यूट का था। हम चाह क्या रहे हैं, हम ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो अब जैसे ही हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हमने यूजर को जो है फुल राइट्स दे दिए रीड राइट एग्जीक्यूट के, किस डायरेक्टरी के ऊपर, टेस्ट डायरेक्टरी के ऊपर, और उसके ग्रुप को जो है हमने सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट का दे दिया, और अदर यूजर के राइट्स को हमने खत्म कर दिया, जीरो कर दिया, यानी कि एक्सेस डिनाइड हो जाएगा। जैसे ही आप ये कमांड जब एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद आप वेरीफाई करना चाहते हैं लिस्ट की कमांड यूज करें, तो ये देखिएगा यहाँ पे ये ओनर को 7 जब हमने लगाया था तो RWX की जो है वो राइट्स दे दिए। दूसरा 5 हमने यूज किया था तो रीड और एग्जीक्यूट के राइट्स दे दिए उसने, ये देखिए। और इसी तरह हमने 0 लगाया था तो अदर यूजर को उसने 0 यानी कि एक्सेस डिनाइड कर दिया, यानी कि कोई राइट्स जो है वो नहीं दिए। तो ये बेसिकली हमने नंबर सिस्टम के थ्रू है किसी डायरेक्टरी या फाइल्स के ऊपर जो है परमिशन लगाई है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लिसिटी जो है उसके जरिए यूज किया था, हमने करेक्टर्स RWX को यूज करते हुए इंप्लीमेंट किया था। ये हमारे पास लिस्ट है, अगर हम देखें कुछ कमांड्स और देख लेते हैं अगर हम इसमें देखना चाहें। जी, ये हमारे पास लिस्ट की कमांड है। हमने लिस्ट की कमांड की तो हमारे पास सिर्फ दो जो है आइटम जो है वो अवेलेबल है माई लैब के अंदर, एक abc.txt नाम से और दूसरा टेस्ट डायरेक्टरी के नाम से। ये तो अभी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था, यहाँ पे हमने 750 इम्प्लीमेंट किया और ग्रुप की राइट्स जो है उसने ये इम्प्लीमेंट कर दी है। अब आप जैसे ही CD करके इस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, अभी हम रूट से लॉगिन है, जैसे ही हम करेंगे dir कमांड की, लिस्ट की कमांड अप्लाई की हमने, जैसे ही हम लिस्ट की डायरेक्टरी अप्लाई करेंगे, रीड भी हो रहा है एग्जीक्यूट भी हो रहा है उस ओनर को, यानी कि रूट यूनर है, रीड भी हो रहा है, राइट भी हो रहा है और एग्जीक्यूट भी हो रहा है। अगर आप डायरेक्टरी चेंज करते हैं CD डॉट डॉट का मतलब आप डायरेक्टरी से बाहर निकल आते हैं, जैसे ही आप टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर रहते हुए CD डॉट डॉट की तो आप माई लैब के फोल्डर के अंदर आ गए, यहाँ पे आपने लिस्ट कमांड अप्लाई की तो उसने फिर आपको एग्जीक्यूट कर दिया। इट्स मीन के टेस्ट डायरेक्टरी के ऊपर ओनर को फुल राइट्स थे, रीड राइट डब्ल्यू एग्जीक्यूट। ये जितनी भी कमांड्स हमने देखी हैं, ये इंप्लीमेंट जो हमने की हैं, मेक डायरेक्टरी का मतलब राइट की ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं। आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट की किसके अंदर, टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर। टेस्ट डायरेक्टरी जो है उसके ऊपर ओनर के पास रीड राइट एग्जीक्यूट के राइट्स थे। रीड राइट एग्जीक्यूट के राइट्स हमने किस तरह दिए थे, 7 के थ्रू हमने दिए थे ओनर को। तो हमने ये मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म किए हैं। अगर आपने लिस्ट की कमांड यूज की है तो इसका मतलब है कि आप रीड कर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर आप चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप रीड कर रहे हैं। अगर आप कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो ये सारे ऑपरेशन जो है वो हमने किस डायरेक्टरी के अंदर किए, टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर किए। और टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर कौन यूज कर रहा है, रूट कर रहा है, और रूट इज ए ओनर, रूट इज ओनर। ये हमने वेरीफाई किया इस कमांड के जरिए कि रूट जो है वो तमाम टास्क परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह अगर आप जो है ये हमारे पास एक ग्रुप है, हमने 3 तरह के राइट्स अप्लाई किए हैं 750। हमने 7 को वेरीफाई कर लिया, 7 जो था वो रूट का था। अब 5 जो है वो ग्रुप ग्रुप जो है, ग्रुप हमारे पास माई ग्रुप हमने इस टेस्ट डायरेक्टरी को असाइन किया था। अब माई ग्रुप के अंदर हमने कौन से राइट्स दिए हुए हैं, हमने रीड के राइट्स दिए हैं और एग्जीक्यूट के राइट्स दिए हैं, यानी कि 5। अब हम कोई भी एक यूजर जो है, कोई यूजर माई ग्रुप का कोई भी यूजर उससे लॉगिन होंगे और उसमें हम देखेंगे कि हम रीड राइट और एग्जीक्यूट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आया वो परफॉर्म होते हैं या नहीं, क्योंकि हमने राइट्स क्या दिए हुए हैं माई ग्रुप को, माई ग्रुप के यूजर को हमने राइट्स दिया कि वो रीड भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट।
लेकिन वो राइट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। लेट्स सी, ये वेरीफाई करते हैं कि ये होता भी है कि नहीं होता। ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है, ये मैंने आपको प्रीवियस दिखाया। SU A1 जो है, ये माई ग्रुप जो है, माई ग्रुप आपका एक ग्रुप है जिसके अंदर A1 यूजर है, और उसके अंदर रूट यूजर भी था। रूट जो था वो ओनर था, रूट ओनर था, उसके जरिए हमने वेरीफाई कर लिया उसके राइट्स। अब A1 के पास जो है वो राइट्स कौन कौन से हैं, एक उसके पास रीड के हैं और एक एग्जीक्यूट के हैं। उसके पास W यानी कि राइट के एग्जीक्यूट नहीं है, क्योंकि हमने 5 जो है वो इसको असाइन किया था A1 को। अब हमने लॉगिन हुआ, ये लॉगिन होने का तरीका है लिनक्स के अंदर। A1 जैसे आपने A1 किया, देखें ये प्रॉम्प्ट आपको बता रहा है कि A1 से यूजर लॉगिन हो गया। उसने लिस्ट किया तो उसको शो हो गया, यानी कि उसने रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। आर का मतलब लिस्ट कमांड जो है वो रीड के लिए आप समझ के रीड कर रहा है, यूजर रीड करना चाह रहा है। जैसे उसने लिस्ट कमांड अप्लाई की, उसके सामने डायरेक्टरी और टेक्स्ट फाइल जो है वो डिस्प्ले हो गई। रिमेंबर, A1 इज ए यूजर ऑफ ग्रुप मेंबर, यानी कि जो ग्रुप है उसका एक यूजर है, नॉट ए ओनर, ओनर नहीं है। और मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ आप लोगों की याददाश्त के लिए कि A1 जो है वो ग्रुप का मेंबर है, ओनर नहीं है। ग्रुप को हमने RX के राइट्स दिए हैं, रीड और एग्जीक्यूट के, और 5 डिजिट के साथ। जी, अब हम अगर दोबारा PWD कमांड यूज करेंगे तो वो हमें पूरा पाथ बता देगा कि हम इस टाइम कहाँ पे खड़े हैं। हम ETC के फोल्डर के अंदर माई सोल्यूशन और उसके अंदर माई लैब का फोल्डर है, उसमें हम मौजूद हैं इस टाइम। PWD की कमांड ये करती है। अब आप लिस्ट आपने कर लिया। अब जैसे ही आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये कमांड हमने इंप्लीमेंट की है, ये बता रहा है कि माई ग्रुप जो है उसके अंदर A1 उसका यूजर है। ये वेरीफाई भी कर सकते हैं आप, जिससे अभी हम करंटली लॉग इन है ये यूजर। तो बेसिकली अब आप जैसे चेंज करेंगे तो वो आप चेंज भी हो गए, आप उस फोल्डर के अंदर चले गए। अब PWD करें तो अब आप इस टाइम टेक्स्ट डायरेक्टरी के अंदर है, चेंज डायरेक्टरी हो गई है, एग्जीक्यूट भी हो गई। हाँ जी, रीड भी हो गया और एग्जीक्यूट भी हो गया, कोई मैसेज नहीं आया। अब हम वेरीफाई करते हैं कि W जो है राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। हमने राइट का ऑपरेशन जो है अलाउ नहीं किया हुआ। किस टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर हमने RX के राइट्स दिए हुए हैं, ये देखें आपके सामने R-X। इसका मतलब है कि रीड भी कर लिया था और एग्जीक्यूट भी हो गया था। अब आपने राइट W को वेरीफाई करना है, तो ये मेक डायरेक्टरी बनाए ना, आप एक डायरेक्टरी बनाए MKR मेक डायरेक्टरी A1। जैसे ही आप ये कमांड अप्लाई करेंगे, उसने कहा जी परमिशन डिनाइड, साथ ही आपको मैसेज डिस्प्ले हो गया। क्यों? क्योंकि इस वजह से कि परमिशन आपने रीड और एग्जीक्यूट की दी थी, आपने राइट की परमिशन नहीं दी थी उस ग्रुप के किसी भी यूजर को। और ग्रुप क्या है? माई ग्रुप का है, और माई ग्रुप के अंदर A1 यूजर था और A1 से हम लॉग इन हुए थे। ओनर के पास सारे राइट्स थे, ओनर ने सारे राइट्स जो है वो रीड भी किया, उसने एग्जीक्यूट भी किया और उसने राइट भी किया। तो यहाँ पे हमने रीड भी किया था, ये लिस्ट कमांड के जरिए हमने रीड भी किया, हमने चेंज किया, हमने एग्जीक्यूट भी किया। ये सारी कमांडें हमने की हैं, और रीड भी हो गया था और एग्जीक्यूट भी हो गया था। लेकिन W राइट के लिए हमने एक डायरेक्टरी बनाने की कोशिश की, तो उसने हमें मैसेज दे दिया कि भाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि राइट के राइट्स ही नहीं है इस यूजर के पास। तो ये हमारे पास जो है वो एक एग्जाम्पल थी। इसी तरह ये एक एग्जाम्पल और है, ये आप देख लीजिएगा। इसी तरह आगे आपने ओनर या ग्रुप कमांड के जरिए ग्रुप को चेंज करना, ओनर को चेंज करना, तो वो किस तरह आप चेंज कर सकते हैं। तो आप किस कमांड के जरिए यूज कर सकते हैं? दो कमांड यूज आती हैं, चेंज OWN और चेंज ग्रुप। ये दो कमांड जो है, आप ओनर को चेंज करना है या ग्रुप को चेंज करना है, किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का। अभी हम प्रीवियस जितनी भी स्टडी करके आए उसमें हमने देखा कि किसी भी फाइल और डायरेक्टरी के साथ उसका ओनर भी होता है और उसका ग्रुप भी होता है। तो वो ग्रुप में वो यूजर जो है वो किसी ग्रुप के साथ जो है वो एसोसिएट होता है या उस ग्रुप के अंदर लाई करता है। तो अगर आपने ओनर भी चेंज करना है किसी फाइल का और ग्रुप भी चेंज करना है, तो आपके पास ये कमांड है, चेंज ओनर, ओनर नेम और फाइल का नाम और डायरेक्टरी जिसका चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, ये नीचे एक एग्जांपल है, यहाँ पे ये एडमन जो है ये ओनर हमने बनाया है किसका? माई सोल्यूशन नाम का एक हमारे पास फोल्डर है, और हमने उसका ओनर चेंज किया और उस ओनर को हमने एडमन जो था उसको असाइन किया। जी, ये हमारे पास एक वे है कि हम इसको कर सकते हैं। लेट्स सी कि अगर कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं।
अगर आपने ओनर और ग्रुप दोनों को चेंज करना हो, आपने ओनर को भी चेंज करना है और ग्रुप को भी चेंज करना है, तो ओनर एंड ग्रुप आप फाइल और डायरेक्टरी का नाम बताएंगे कॉलन साइन के साथ। तो ये नीचे एग्जांपल है, ये हमारे पास एडमन इज ए ओनर एंड माई सोल्यूशन इज ए ग्रुप नेम, ग्रुप का नाम है, और फाइल या डायरेक्टरी का नाम जो है वो टेस्ट है, यानी कि टेस्ट डायरेक्टरी का ओनर भी चेंज हो गया और फोल्डर भी, और जो ग्रुप है वो भी चेंज हो गया। तो ये ओनर और ग्रुप की कमांड जो है वो यूज होती है चेंज करने के लिए। इसी तरह आप अगर ग्रुप को सिर्फ चेंज करना हो, यानी कि सिर्फ ग्रुप को चेंज करना है, ग्रुप हम ऑलरेडी दो पीछे स्लाइड्स में कर भी चुके हैं, ग्रुप को चेंज करना ये कमांड के थ्रू हम कर चुके हैं, चेंज ग्रुप की कमांड के जरिए ग्रुप का नाम आप बताते हैं। लेकिन एक और मेथड भी है, चेंज CHOWN कमांड के जरिए कॉलन साइन ग्रुप का नाम। तो ये देखें, ये एग्जांपल है, CHON कॉलन साइन माई सोल्यूशन टी test.txt, ये फाइल का नाम है। इस फाइल के ग्रुप को हमने चेंज किया है CHON के जरिए, यानी ग्रुप, या आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको सिंपल, आप चेंज ग्रुप की कमांड के जरिए माई सोल्यूशन test.txt, ये फाइल का नाम है जिसका ग्रुप हमने चेंज कर दिया बेसिकली। तो ये कमांड जो है बेसिकली ग्रुप को चेंज करने के लिए यूज होती है। यहाँ पे ये कमांड्स प्रैक्टिकली कमांड्स हैं कुछ, ये देखें यहाँ पे, ये माई सोल्यूशन माई लैब फोल्डर का नाम है, ग्रुप माई सोल्यूशन हमने कर दिया। जैसे आप लिस्ट करेंगे तो ये देखिएगा, ये माई लैब का पहले जो ग्रुप था वो रूट था। यहाँ पे जब आपने ये कमांड इंप्लीमेंट की और लिस्ट कमांड को लगाया तो देखें, ये सॉरी ओनर को हमने चेंज कर दिया, ओनर जो है वो हमने चेंज किया है रूट का। ये देखें, ये रूट था ओनर पहले माई लैब का, और अब हमने किसको कर दिया, माई सोल्यूशन को कर दिया। इसी तरह अगर आपने ग्रुप को चेंज करना है तो CHON कॉलन साइन, तो कॉलन साइन और माई लैब का जो पहले ग्रुप था वो रूट था, और जब आपने ये कमांड अप्लाई की है, अब लिस्ट कमांड अप्लाई करें तो देखें तो ये ग्रुप वन, अब आपने ग्रुप वन जो है वो CHON के जरिए आपने कमांड अप्लाई की और माई लैब का जो पहले ग्रुप था रूट था वो ग्रुप वन हो गया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है, यहाँ पे आपने CHGR कमांड के जरिए किया है, तो यहाँ पे ग्रुप टू कर दिया, तो ग्रुप वन जो हमने पहले किया था अब हमने उसको ग्रुप टू कर दिया। तो दोनों कमांडें हमने यूज कर ली हैं, दोनों कमांडों में हमने देखा कि दोनों कमांडों के जरिए जो है आप ग्रुप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कमांड थी जिसके अंदर हमने ग्रुप्स को चेंज किया और उसके ओनर को चेंज किया, तो बेसिकली ये यूज की है। तो ये आज की लिनक्स के हवाले से था। अब लेट्स सी कि हम आगे देखते हैं कि जी, हम नेटवर्क प्रैक्टिसेस की बुक में आज का जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो बेसिकली रिमोट एक्सेस सर्वर का, हम सर्वर का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। सर्वर के चैप्टर में जो है वो हम सर्वर के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि सर्वर को किस तरह मेंटेन किया जाता है और उसको एक्सेस किस तरह किया जाता है। आज का जो टॉपिक है वो रिमोट एक्सेस का है। रिमोट का मतलब आप सर्वर को डिस्टेंस से जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं, आप सर्वर के पास मौजूद नहीं है लेकिन आप उसको रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो क्या तरीका है, क्या मेथड है जिसके जरिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, और वो क्यों जरूरी है कि सर्वर को या डिवाइसेस को जो है वो एक डिस्टेंस से जो है वो हम एक्सेस करें। उसकी रीजंस हैं जो आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो उस टॉपिक में आपको पता चल जाएगा कि क्या किस लिए यूज होता है। तो हम सबसे पहले आज KVM स्विचेस और कंसोल सीरियल पोर्ट्स को पढ़ेंगे। कंसोल सर्वर, सीरियल कंसोल सर्वर जो है इस टॉपिक के अंदर होगा। तो KVM जो है वो बेसिकली कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन एब्रीवेशन है, और ये बेसिकली बाज दफा आप इसको कीबोर्ड, वीडियो और माउस स्विच भी कह सकते हैं।
آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو ہے آپ کمپیوٹرز کو جو ہے اس کی ہارڈ ویئر ڈیوائسز جو لگاتے ہیں، کی بورڈ ماؤس لگاتے ہیں، آپ کے پاس سرور موجود ہے اور اس سرور آپ سسٹم آپ کے پاس سرور ملٹیپل سرورز پڑے ہیں ڈیٹا سینٹر کے اندر، ریک کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی ان تمام سسٹمز کے ساتھ کی بورڈ ماؤس لگانا، ان کے ساتھ مانیٹر لگانا، خاص طور پہ ریکس کے اندر جب سرور موجود ہو، وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اور امپاسبل ہے. تو لہٰذا اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ یہ ایک ڈیوائسز ہوتی ہیں کے وی ایم سوئچز، جو کہ آپ کے انوائرمنٹ کو کلین رکھتی ہیں. اتنی زیادہ اب اگر آپ کے پاس سرور موجود ہیں 8-10 کوز لیٹ سے سرور موجود ہے، تو ہر سرور کے ساتھ کی بورڈ اور ماؤس پھر اس کو مینیج کرنا، انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک میس اپ ہو جائے گا، ساری چیزیں اکٹھی لگی ہوں گی، تو وہ تھوڑا سا مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کے وی ایم بیسیکلی آپ کو یہ پرووائڈ کرتا ہے فیسلٹی کہ آپ اپنے سسٹمز کو جو ہے ریموٹلی مینیج کر سکیں، ڈسٹینس کے اوپر مینیج کر سکیں. ایک کی بورڈ ماؤس یا مانیٹر یا ایل سی ڈی کے ساتھ جو ہے آپ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک ڈایاگرام پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو پھر ہم اپنے ٹاپک پہ آئیں گے، بک کی طرف. تو یہ سپوز ہم ازیوم کریں کہ یہ ریک ہیں، ان ریکس کے اندر بہت سارے سرورز پڑے ہوئے ہیں. اب یہ سرور جو ہے آپ کا ڈیٹا سینٹر کے اندر پڑا ہوا ہے ریک، اور اس ریک کو آپ نے ڈیٹا سینٹر میں کوشش ہونی چاہیے، ڈیٹا سینٹر آپ کا جو ایلوکیٹڈ اسپیس ہے وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہو. لہٰذا جیسے ہی آپ ان کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر جو ہے وہ بیسیکلی آپ اس کو باہر رہتے ہوئے وداؤٹ آپ انٹر ہوئے جو ہے آپ وہاں پہ اس کو ایکسیس کر سکیں. تو اس کے لیے آپ سوئچز یوز کرتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس اگر ڈایاگرام آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک پرسن جو ہے وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ ڈیوائس ہے جس کے ساتھ باقی کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہیں، یعنی کہ سرورز کنیکٹڈ ہیں، اور وہ سنگل ایک ڈیوائس کے ذریعے، یہ ایک کی بورڈ اور ماؤس کے ذریعے جتنے بھی سرور پڑے ہیں ان کو ایکسیس کر سکتا ہے. تو لہٰذا وہ ریموٹلی کمپیوٹر کو ایکسیس کر رہا ہے. ایک یہ آپ کے پاس ایک یہ ڈایاگرام ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آئی پی سوئچز. آپ آئی پی ایڈریسز رکھ کے سوئچز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ لوکلی بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ انٹرنیٹ کے تھرو اگر آئی پی ایڈریس دیے ہوئے ہیں تو آپ گھر میں بیٹھ کے بھی اس سسٹم کو، سرور کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس مشینز لائن میں لگی ہوئی ہیں اور ایک ہی ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، چاہے آپ ایک مانیٹر کی بورڈ لگا کے ان تمام کو مینیج کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا فائدہ ہے کے وی ایم کا. اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، یہ ایک پورٹ ہوتی ہے، سیریل پورٹ، موسٹلی آپ لوگوں نے شاید دیکھی بھی ہو، کمپیوٹر کے پیچھے یہ پورٹ موجود ہوتی ہے. تو یہ سیریل پورٹ کا تذکرہ ہوگا، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اس کی ڈائیگرام. اور یہ ایک ہم سیریل کنسول سرور بھی کہلاتا ہے. یہ بھی بیسیکلی اسی پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے، ریموٹلی مینیج کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ بھی ایک طرح کی ڈیوائس ہے. آئیے اب ہم اگر ہم دیکھیں اپنا ٹاپک جو ہمارا بک کے اندر ٹاپک موجود ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج پرووائڈ اے ریموٹ کنسول ایکسیس، کہ آپ نے ریموٹلی سرور کو کیوں ایکسیس کرنا ہے. سرور نیڈ ٹو مینٹین ریموٹلی. سرور جو ہے وہ ہمیشہ ریموٹلی آپ مینٹین کرتے ہیں، یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. ابھی ریزن بھی دیکھیں گے. ان دا اولڈ ڈیز ایوری سرور ان اے مشین روم ہیڈ اٹس اون کنسول، کی بورڈ، ویڈیو، ہارڈ کاپی آف کنسول. تو پرانے جو تھے ان کے ساتھ جتنے بھی سرور ہوتے تھے ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کی بورڈ، ماؤس، مانیٹر وغیرہ لگا ہوتا تھا. essay packed more into their machine room, eliminating these consoles saved a considerable space. یعنی کہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ مشین روم کے اندر پیک ہوتا تھا، یہ ساری ڈیوائسز سرور کے ساتھ لگی ہوتی تھی. تو اگر یہ ساری ڈیوائسز جو اتنی ساری ہر سرور کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اگر ان کو ریموو کر دیا جائے تو کافی ساری اسپیس آپ کو بچتی ہے. تو آئی ٹی روم کے اندر یا ڈیٹا سینٹر کے اندر روم جو ہے دیٹ از مچ مور ایکسپینسو. آپ جتنی بھی اسپیس بچا سکتے ہیں دیٹ از جو ہے آپ کے لیے اتنا ہی جو ہے یوزفل ہوگا، اور آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس اسپیس کو جو ہے یوزفل پرپز کے لیے، بجائے اس کے لیے آپ اننیسیسری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر رکھی ہوں ڈیٹا سینٹر کے اندر یا اس آئی ٹی روم کے اندر، جو کہ اننیسیسری انہوں نے اسپیس جو ہے وہ آکوپائڈ کی ہو. تو کے وی ایم سوئچ از اے ڈیوائس دیٹ لیٹس مینی مشین شیئر اے سنگل کی بورڈ، ویڈیو اینڈ ماؤس. تو کے وی ایم وہ ڈیوائس ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو ڈایاگرام کے اندر بھی دکھایا
کہ اس مشین کے اس ڈیوائس کے ذریعے آپ بہت سارے سرور کمپیوٹرز کو صرف ایک کی بورڈ، ایک ماؤس اور ایک ویڈیو کے ساتھ جو ہے مانیٹر کی اسکرین کے ساتھ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہر ایک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ لگائیں۔ مثال کے طور پہ یو مائٹ بی ایبل ٹو فٹ 3 سرور 3 کنسول انٹو سنگل ریک۔ اگر آپ نے ایک ریک کے اندر 3 سرور ہے تو اس کے ساتھ 3 آپ نے کنسولز لگائی ہوئی ہیں، ڈیوائس لگائی ہوئی ہیں، تو ود KVM سوئچ نیڈ اونلی سنگل کی بورڈ، ماؤس اور مانیٹر فار دا ریک۔ تو ایک صرف KVM مشین کے ذریعے ان تینوں کے لیے وہ ایک کی بورڈ، مانیٹر اور ماؤس پورا ہوگا۔ نو مور سرور کین فٹ دیئر، اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ سرور آپ اس کے اندر رکھ بھی نہیں سکتے۔ تو یو کین سیو ایون مور روم بائی ہیونگ اے ون سوئچ پر رو آف دا ریک اور ون فار دا انٹائر ڈیٹا سینٹر۔ تو اس طرح آپ ایک جتنے ریکس ہیں ان ریکس، ہر ریکس کے لیے ایک KVM مشین لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو پورا ڈیٹا سینٹر کے لیے جتنے بھی ریکس پڑے ہیں ان کے لیے جسٹ ایک KVM مشین کو یوز کر لیں تاکہ اسپیس بچ جائے۔ وہ جو اسپیس بچے گی اس کو آپ پازیٹیو اس میں اور مشینز آپ ایڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں۔ بگر KVM مشین، اگر آپ بڑی KVM لیں گے تو وہ ذرا کاسٹلی ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ اسپیس سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے چھوٹی KVM بھی لے سکتے ہیں۔ یو کین سیو مور ایون اسپیس بائی یوزنگ اے IP KVM دیٹ ہیو نو کی بورڈ، مانیٹر اینڈ ماؤس۔ تو یہ آپ لے سکتے ہیں کی بورڈ IP KVM، میں نے ابھی دکھایا آپ کو ڈائیگرام کے اندر۔ تو بیسیکلی KVM کنسول جو ہے وہ آپ کو نیٹ ورک کے اوپر آپ جو ہے سافٹ ویئر آپ نے انسٹال کیا ہوتا ہے اور مشین ہوتی ہے یا ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک ہے، اس کے ذریعے آپ کنیکٹڈ ہیں اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے، تو KVM سے آپ جو ہے کنیکٹ ہو کے تمام سرورز اور مشینز کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے پہلے جو تھے پریڈیسیسر ٹو KVM سوئچز اور سیریل پورٹ بیس، پہلے سیریل پورٹ میں نے آپ کو دکھائی تھی، تو سیریل پورٹ ڈیوائسز ہوتی تھی پہلے، سرور کے پاس سرور میں کوئی ویڈیو کارڈ نہیں ہوتا تھا، ایک سیریل پورٹ ہوتی تھی جس کے ساتھ جو ہے ٹرمینل اٹیچ ہوتا تھا، تو وہ کافی ساری اسپیس لے لیتا تھا، یعنی کہ پرانے جو سسٹم تھے کمپیوٹر سے سیریل پورٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ یہ مسئلہ تھا۔ تو ایک ٹیبل کے اوپر بہت سارے آپ کے جو ہیں وہ مانیٹر یا LCD یا ٹرمینل ہی پڑے ہوتے تھے جو کہ سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے تھے، اور وہ اس وجہ سے کنیکٹڈ ہوتے تھے کہ سرور جو ہے وہ سیریل پورٹ ہوتا تھا۔ بٹ یہ بعد میں چینج اس طرح ہوا کہ آپ KVM مشینیں جو آ گئی انہوں نے جناب آپ کی وہ جو ہر ٹرمینل ہر سرور کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا اس کو ریموو کر دیا، جسٹ ایک پورٹ کے ذریعے آپ تمام سرور کو کنیکٹ کریں اور اس پورٹ کے ذریعے یعنی KVM مشین کے ذریعے اس کنسول مشین کے ذریعے جو ہے وہ تمام جو آپ کے سرور ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ہینڈل کریں، بجائے اس کے کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ ٹرمینل رکھا ہو۔ تو یہ ہمارے پاس KVM جو تھا اس کے بارے میں ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہے کہ ہم کس وجہ سے جو ہے وہ KVM جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا KVM جو ہے آپ کے پاس مختلف ایک سیریل کنسول ہے اور KVM سوئچز آپ کو بینیفٹ کرتے ہیں، پرمٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے نیٹ ورک کو یوز کرتے ہوئے اپنے سسٹمز کا جو ہے اس کا اسٹیٹس معلوم کر سکیں، ان کو کنیکٹ کر سکیں، ان کو مانیٹر کر سکیں، بیسیکلی یہ ہوتا ہے۔ اور بعض ڈیوائسز ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اندر فرم ویئر ہوتا ہے، فلیش اسٹوریج ڈیوائسز بھی ہوتی ہیں لیکن ان کا ہارڈ ڈرائیو نہیں ہوتی، تو اس طرح کی بھی ڈیوائسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ تو کہتا ہے کہ تمام کے تمام جتنے بھی ڈیوائسز ہیں وہ آپ ریموٹلی، بجائے اس کے کہ آپ اس ڈیٹا سینٹر کے اندر جائیں، آپ ریموٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں KVM کے ذریعے سیریل کنسول کے اندر۔ اور تمام وینڈر جو ہیں وہ آپ کو، بعض وینڈر یہ ہیں کہ وہ آپ کو ہارڈ ویئر کارڈ بھی جو الاؤ کرتے ہیں، ہارڈ ویئر کارڈ ہوتے ہیں جو کہ ریموٹ کنٹرول کرنے کے لیے مشین کو ریموٹلی آپ ان کو جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اور یہ ریموٹ کنٹرول سسٹم جو آپ کے پاس ہوتے ہیں، ابھی ریموٹ کنٹرول سسٹم میں نے آپ کو ایک سرور دکھایا تھا، ریموٹ کنٹرول جو ڈیوائسز ہے وہ آپ کو پرمٹ کرتی ہیں کہ آپ کیز کمبینیشن بھی یوز کر سکیں۔ جس طرح ونڈو میں R کنٹرول ڈیل آپ پریس کرتے ہیں تو فوراً آپ لاک کر جاتے ہیں یا سسٹم کے سامنے آپ کے سامنے پاپ اپ ونڈو آ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ یہ جو ریموٹ ڈیوائسز ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے سرور یا ڈیوائسز کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو آپ ان کی کمبینیشن کی سیکوینس کے ذریعے جو ہے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور مور اوور یہ ہے کہ سیریل کنسول جو ہے وہ آپ کو ASCII
फॉर्म के अंदर डाटा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज स्ट्रीम की सूरत में डाटा जो है वो रिसीव करता है। इसका मतलब है कि आप उसके रिकॉर्ड को इजीली रीड भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, किसके, सीरियल कंसोल की। तो और बाद में अब अगर आप जो है देखना चाहते हैं बैक डेट्स के अंदर कि आपके सिस्टम में कौन लॉग इन हुआ था, क्या एक्टिविटी परफॉर्म हुई थी ड्यू टू रिकॉर्डिंग, तो वन कैन व्यू एवरीथिंग दैट हैपन ऑन ए सीरियल कंसोल गोइंग बैक मंथ। यानी कि रिकॉर्डिंग के थ्रू आप वो पीछे बैक साइड पे जो भी काम परफॉर्म हुआ है वो उसको व्यू भी कर सकता है। दिस कैन बी यूज फॉर फाइंडिंग एरर मैसेज दैट वर इमिटेड टू द कंसोल, और डिबगिंग प्रोसेस के लिए भी ये यूजफुल है। अगर आप डिबगिंग कोई प्रॉब्लम आई है तो आप वो उस रिकॉर्डिंग के जरिए जो है वो आप मैसेजेस के थ्रू जो है आप एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज, और इसके अलावा सर्वर के अलावा और बहुत सी डिवाइसेस होती हैं जिनको आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस हैं, जिस तरह राउटर है, स्विचेस हैं, ये भी सीरियल कंसोल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सीरियल कंसोल जो है एडिशनली केवीएम सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो दैट इज बेसिकली, इसी तरह राउटर होता है। राउटर जो है उसमें सीरियल पोर्ट यूज हो रही होती है, उसकी आउटपुट अगर आपने लेनी हो तो उसकी आउटपुट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि एरर मैसेजेस या वार्निंग जो है वो अगर किसी राउटर में कोई प्रॉब्लम है, आप राउटर में लॉग इन होके राउटर को लॉग इन करके राउटर के साथ आप उसकी आउटपुट जो है वो जिस जिस टर्मिनल पे या जिस कंसोल के ऊपर लेना चाहते हैं, आप उसको सीरियल पोर्ट के साथ कनेक्ट करके उसके एरर मैसेजेस, उसके वार्निंग, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं बेसिकली। सो ये बेसिकली सिर्फ सर्वर नहीं है, और डिवाइसेस की जो है उनको भी आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। कहता है कि जब आप सर्वर परचेज कर रहे हो तो आपकी एक मेजर कंसिडरेशन ये भी होनी चाहिए कि आपको किस किस्म का रिमोट एक्सेस चाहिए कंसोल के ऊपर जो अवेलेबल हो। रिमोट एक्सेस टू द कंसोल किस तरह का चाहिए आपने कंसीडर करना है। सपोज एंड डिटरमिन विच टास्क रिक्वायर सच एक्सेस, कौन सा टास्क जो है वो आप चाहते हैं। जब आप सर्वर परचेज कर रहे हैं तो आपके ज़हन में क्या है कि आप कौन सा रिमोट एक्सेस उसको चाहते हैं कि वो रिमोटली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उसको एक्सेस कर सके। इन इमरजेंसी इट इज नॉट रीजनेबल और टाइमली टू expect ऐसे ट्रेवल टू द फिजिकल डिवाइस टू परफॉर्म देयर वर्क। अच्छा, एक अगर कोई इमरजेंसी है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद नहीं है और वो कहीं बाहर है और कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो बजाय इसके के लिए वो फिजिकली वहां पे आए, वो रिमोटली उस सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, और रिमोटली एक्सेस करने के बाद उसमें जो प्रॉब्लम, जो इशू है उसको हल करे। इन नॉन एमरजेंसी सिचुएशन एसए वुड बी एबल टू फिक्स एट लीस्ट माइनर प्रॉब्लम फ्रॉम होम, रोड एंड ऑप्टिमल फुल प्रोडक्टिविटी रिमोट वन टेलीकम्युनिकेशन। छोटा मोटा अगर माइनर एरर है और इमरजेंसी भी नहीं है तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उस सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, और उस सिस्टम को एक्सेस करने के बाद उसमें अगर कोई माइनर सा इशू है, प्रॉब्लम है, वो उसको वहीं पे हल कर सकता है अगर इमरजेंसी ना हो। फिजिकली उसकी, अगर वो फिजिकली नहीं आ सकता और नॉन इमरजेंसी है और वो माइनर सा प्रॉब्लम है, दे कैन एक्सेस दैट सिस्टम थ्रू अ रिमोट एक्सेस, और उस प्रॉब्लम को वहीं पे घर बैठे या ट्रैवलिंग करते हुए उस सिस्टम को जो है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते